جی ناظرین، ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے کل کا، انہوں نے کہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی دال میں کالا ہے۔ یہ دال کالا کیا ہے اس کے بارے میں آج یا کل پتہ چل جائے گا۔ دوسرا، انہوں نے صوبے بنانے کے بارے میں کہا ہے کہ صوبے جو ہیں اتفاق رائے اور مل جل کر بات چیت کے ذریعے بننے چاہیے بجائے کہ زور زبردستی سے۔ تیسرا، انہوں نے کہا ہے قانون سازی میں ہم تب تک ووٹ نہیں دیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے۔ تو سلمان بھائی کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی دال میں کالا ہے، کیا یہ کوئی پریشر تو نہیں، کوئی بلیک میلنگ تو نہیں ہے جو حکومت کو اس آرڈر کے ذریعے جو آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کیا جا رہا؟ یہ ان کے جو بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں؟ جی فیصل بھائی، پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈرز ہیں نا، ان کی سوچ اور عام آدمی کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اب جو ان کے مطالبات ہیں، ان کے سوچنے کا انداز ہے، وہ جو عام جو کہہ لیں پاکستان کا شہری ہے، اس کے جو ان کو مسائل ہیں، ان کو جو کہہ لیں زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق ان کا کام ہی لگتا ہے۔ جیسے اگر زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب بلاول ہاؤس کراچی میں بیٹھ کر یا زرداری ہاؤس یا بلاول ہاؤس لاہور میں بیٹھ کر جو کئی سو کنال پر محیط ہے، یہ لوگوں کے مسائل کی بات کرے، یا شریف خاندان جاتی عمرہ میں بیٹھ کر غریب عوام کی بات کرے، یا جو عمران خان صاحب ہیں وہ بنی گالہ میں بیٹھ کر کہ میں غریبوں کا لیڈر ہوں، تو یہ تو بڑے عجیب و غریب سے مسائل لگتے ہیں۔ اس لیے جو بلاول بھٹو صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں نا، اب جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہونا چاہیے یا معاملات کو ایسے چلنا چاہیے، اب اس کے پیچھے ان کی جو سوچ ہے وہ اب کیونکہ ان کی پارٹی جو ماضی میں ان کی والدہ تھی، ان کے نانا جی تھے، انہوں نے ڈیموکریٹک جو سوچ کے اوپر پارٹی کو چلایا، اور اب بھی جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ڈیموکریٹک سوچ رکھ کے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ تو جو صوبوں کے اوپر انہوں نے بیان دیا ہے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو اپنی سیاست ساری صوبائیت کی تحت کرتی ہے۔ صوبہ سندھ کے حوالے سے ان کی زیرو ٹالرنس ہے کہ اس کے جو ہے نا اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، نہ وہ ہونے دیں گے، کیونکہ وہ آخری حد تک جائیں گے کہ صوبہ سندھ کی جو ہے نا وہ تقسیم نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے نا سرائکی صوبہ بنے یا 2-3 صوبے بنے۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ صوبوں سے متعلق ان کا کیا نیریٹو ہے؟ کیا وہ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ سندھ کو بھی چینج کر تبدیل کیا جائے مختلف صوبوں میں، ایک ہی بجائے زیادہ یونٹ بننے چاہیے؟ جی فیصل بھائی، اس میں دو جو رائے ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ ایک تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ اب عوام سے تو کوئی رائے لینے کے لیے اس وقت تیار ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے مسائل کا کوئی حل بتاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں پٹرول سستا کرو، عوام کہتے ہیں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ مکان دو، ہمیں روزگار دو، ہمیں جو ہے وہ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کے لیے ہمیں لائنوں میں نہ لگنا پڑے، چینی، دالیں، آٹا اور دیگر اشیاء کی قیمتیں کم کرو۔ وہ تو صوبوں کا مطالبہ کوئی عوام کر ہی نہیں رہی۔ اب یہ آج تک نہیں سمجھ آ رہی کہ صوبوں کا مطالبہ نئے کا کون کر رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں۔ یہ بات تو بعد میں آئے گی نا کہ سندھ میں بنے، پنجاب میں بنے، بلوچستان میں بنے یا خیبر پختونخوا میں بنے۔ یہ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ سیاسی جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے ایک فارمولہ طے کر لیا، یا انہوں نے آج خود یہ سوچ لیا ہے کہ عوام کے مسائل کا حل نئے صوبے ہیں۔ اب ان نئے صوبوں کے لیے پہلے تو سب سے جو ہے
इतनी माशी तौर पर इतने फंड्स मौजूद होने चाहिए कि जिसके साथ वो सूबे के लिए वजीर आला हाउस चाहिए, गवर्नर हाउस चाहिए, अदालतें चाहिए, सारा निज़ाम चाहिए जो चल रहा है जैसे लाहौर, पेशावर, कराची और पेशावर में। अब वो इतनी जो सारी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस हैं, आईजी का ऑफिस है, पुलिस के, उसके अलावा डाक के, उसके अलावा रेलवे के, या जो भी दफातर सारे होते हैं, उसके लिए हमारा मुल्क क्या इसका मुतहम्मल हो सकता है? ये तो आपकी बात सलमान भाई 100% दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप यूनिट बड़े छोटे करेंगे तो उसमें आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी आएगी, जितना ज्यादा अमला आएगा। एक हुकूमत इधर चल रही है पंजाब में, अगर पंजाब में 7 हुकूमतें चलेंगी तो उधर 7 हुकूमतों में करप्शन होगी। भाई आप सूबे छोटे करने के बजाय इनके मसाइल हल करें। लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल तो आप दे नहीं रहे। अगर आप उसका आप कहते हैं कि जनाब ये यूनिट छोटे होने चाहिए, निजाम में तब्दीली होनी चाहिए। निजाम में तब्दीली कैसे होगी? जब आपने हाईजैक किया हुआ है निजाम कोई, तो निजाम कैसे तब्दील होगा? निजाम आप तब्दील करें, छोटे जो महरूम तबकात हैं उनके मसाइल हल करें, लोगों को फैसिलिटियां दें, और जो मुजरिमान हैं उनको सजाएं दें, करप्शन खत्म करें। फिर जो है हम देखेंगे कि सूबों की जरूरत है कि नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जी फैसल भाई, अब आप देखते हैं जो तमाम जो कह लें कि सूबे है ना 4 पाकिस्तान में इस वक्त, तो 5वां चले गिलगित बल्तिस्तान को लगा लें या आजाद कश्मीर है, जो हमारे 4 बड़े सूबे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ के वजीर आला हाउस, वहाँ के गवर्नर हाउस, वहाँ के आईजी का दफ्तर, वहाँ के मजीद जो तमाम जो कह लें कि एसीडीसी तमाम मशीनरी है, हुकूमती अदालतें हैं, उनका निजाम सब जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले का है। क्योंकि ये सारे जो सूबों के वो शहर थे, जो उनके दारुल हुकूमत थे, वो पाकिस्तान बनने से पहले वो शहर थे। अब इन्हें हमें तो बने बनाए निजाम मिला अंग्रेज की जानब से, या उससे पहले जो हुकूमतें थी जो बड़े सगीर में मुसलमान हुक्मरान थे उनकी तरफ से, हम तो वही निजाम चला रहे हैं। नहरी निजाम भी वही है, रेलवे का निजाम भी वही है, पुलिस का निजाम भी वही है, बाकी जो कह रहे तमाम डाक का निजाम वही है। अब नए सूबे बनाने के लिए अब वो सारे निजाम अगर चला सकेंगे तो फिर ही नए सूबे बनेंगे ना। अगर एक नया कह लें कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, तजर्बा करना है, जिस तरह 79 या 79 साल तजर्बात में गुजर गए हैं, तो वो तजर्बा एक नया किया जाए, और वो अगर खुदा ना खासा तजर्बा जो है वो ठीक तरह ना चला, या वो भी लोग उसी तरह ही करप्ट हुए जैसे मौजूदा है, मसाइल हल करना ही नहीं चाहते अवाम का, तो फिर वो कहते हैं, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जितने दी जानवर कोई वो वहीं आ खलोता। तो इसलिए आप हालात वाकयात को जरा दीगर सेंस से देखना चाहिए कि आप अगर एक मशीनरी मौजूद है, सारे अदारे मौजूद हैं, उनमें मामलात को बेहतर क्यों नहीं करते? तो सलमान भाई कहने से थोड़ा सा हिचकिचा गए कि जितों की खोती होते हैं। हाँ, ये मसाला कहना चाह, अब मैं तो कहता हूँ नाज़रीन के लिए जो है सिर्फ थोड़ा सा जो ना ट्विस्ट है। तो अगर आप छोटे यूनिट की बात करते हैं तो आप तो बल्दियात नहीं बना रहे, बल्दियात बनाए। अगर आपने लोगों के मसाइल हल करने हैं, बल्दियात को एम्पावर करें। जो कौंसलर है उसको कहें कि जाके मामला हल करो। एसीडीसी से पूछो कि तुम क्यों नहीं लोगों के मसाइल हल करते। आप बल्दियात को एम्पावर करो, महरूम तबकात के जो मसाइल हैं वो हल करने में आप ताउन करेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप तो सूबों की तकसीम तो एक बहुत बड़ा जो वो मामला है, इसको आप इस तरह हासिल कर सकते हैं। आप जरी हुकूमतें बनाएं, नीचे बल्दियात बनाएं, कौंसलर को जो है ना आप पावर दें, वो अपने इलाकों के मसाइल हल करे, वो देखे कवानीन, वो देखे मसाइल जो हैं। आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी तो आप जितना मर्जी चला लें,
ब्यूरोक्रेसी आपको ऐसा मुआशरा, ऐसा निज़ाम नहीं देगा जिसमें मसाइल हल हो जाए तमाम। ये बढ़ेंगे ही क्यों जी सलमान भाई? क्या ब्यूरोक्रेसी आपकी बल्दियात का मुतबादल है या सूबे जो हैं अगर नहीं बनते, बल्दियात तो हमारा एम्पावर हो तो वो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। जी फैसल भाई, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कोई भी निज़ाम हो दुनिया का, वो कहते हैं कि बेहतरीन निज़ाम है जो कह लें कि ये बल्दियात का है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि जो साबका सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे कि उनके दौर में भी बल्दियात का निज़ाम जो है वो बड़ी शद्दोमद के साथ उसे मुतारफ कराया गया और उन्हें बड़े बड़े फंड्स दिए गए। मैं उसमें बता देता हूँ, मैं एक यूनियन काउंसिल में बैठा था तो वहां के सेक्रेटरी साहब कहते हैं, मैंने कहा ये बल्दियात का निज़ाम दोबारा आ रहा है। उसने कहा कि यहाँ जो है जो मर्जी आ जाए होना वही है जो करप्शन हो रही है। उसने कहा कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो उन्होंने 80-80 लाख रुपए एक यूनियन काउंसिल में नायब नाज़म को दिए, नाज़म को भी नहीं, फी नायब नाज़म 80-80 लाख रुपए दिए और उन्हें स्पेशल जो अमदाद आई थी इंटरनेशनल, उसके तहत अलहदा उन्हें दफातर भी बना के दिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए। तो उन्होंने कहा जब वो 80-80 लाख रुपए आ गए, इस दौरान जो है वो हुकूमत जो है वो डामाडोल हुई। उन्होंने कहा सब जो वाइस चेयरमैन साहबान थे उन्होंने 80-80 लाख रुपए भी निकलवा लिए बैंकों से, दफ्तर के लिए फंड्स थे वो अलहदा दफ्तर कायम करके उन्हें अपने जाती इस्तेमाल में लाया है और उसके बाद ना वो दफ्तर रहे और ना ही वो 80-80 लाख रुपए रहे। इसलिए निज़ाम बेशक बल्दियाती हो या जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है वो हो, दोनों सूरतों में जो है सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो लोग हैं वो उनकी नीयतें दुरुस्त हों, वो खुदाए वो का खौफ रखते हुए लोगों की खिदमत के लिए जज्बे से आगे आए, ना कि लोगों को लूटने के लिए और लोगों से अपने कहने के इलेक्शन पे 10 लाख लगा के और 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए मैदान में आ जाए। तो वो तो जब तक हमारा इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जो करप्शन पे सजाएं नहीं होंगी, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पंजाब या वफाकी गवर्नमेंट या दूसरे सूबों की जितनी गवर्नमेंट है, सबको जो खास कर जो रिश्वतस्तानी और जो ये पैसों के लेन देन पर सजाएं हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा सख्त करनी होगी। तो दूसरा एक मामला जो अब इशू बना हुआ है इमरान खान साहब के बारे में, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया है कि उनको अशफा ट्रस्ट में जो है ना वो सेहत की जो सहूलियात दी जाए वहां पे मुंतकिल किया जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब का बयान है इस बारे में भी, उन्होंने कहा था कि इसको हुकूमत को खुद देखना चाहिए, इस हवाले से गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए उन्हें क्या जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए था। तो इस बारे में सलमान भाई की क्या राय है, ये पूछते हैं। जी फैसल भाई, मेरा तो इसमें जो कहने के बड़ा वाजिया जो नजरिया है वो कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जो कहते हैं ना इसमें इंटरफेरेंस, वो बज़ाहिरन जो है वो नजर नहीं आती। वो इसलिए कि अगर जो एस्टेब्लिशमेंट ने कोई काम करना हो, यानी कि जो भी मामलात भुट्टो साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, अगर उन्होंने करना हो तो वो इजाजत उन्हें जो जेल मैनुअल है पाकिस्तान में जो नाफजुल अमल है उसमें सुपरिटेंडेंट जेल के पास भी इख्तियारात हैं, उसके बाद जो सेशन जज है जिले का जहां वो कैदी कैद है उसके पास भी इख्तियारात है, उसके बाद जो मुतलका डीसी कमिश्नर है और जो गवर्नर है सूबे का उसके पास भी इख्तियारात है कि वो उस कैदी की हालात उसे देख सकता है, उसको इलाज के लिए शिफ्ट करा सकता है, उसके मामलात देखे जा सकते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया है वो नीचे जो फॉरम्स हैं उनसे होते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ यानी कि पाकिस्तान के जो कहने के स्टेट एज ए वो इस पिटीशन में उसे नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर जो
وہ سرکاری وکیل ہوتے ہیں، پراسیکیوٹر جنرل جنہیں کہہ لیں، تو وہ وہاں پیش ہوتے ہیں اور حکومت کا سارا ان کا جو موقف ہے وہ پیش کرتے ہیں. جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے رپورٹ مانگی جاتی ہے، جیل کا سپرنٹینڈنٹ اپنے ڈاکٹر سے رپورٹ لے کر پھر بھیجتا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. تو اس میں کہاں جو کہتے ہیں کہ آ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ، ایسا کوئی تاثر میرے خیال سے نہیں. چلیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس ٹائم جو بلاول بھٹو کے بیانات کا اس ٹائم آنا خاموشی کے بعد وہ بہت کچھ بیان کرتا ہے. ابھی تو جو سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کا نظر آ رہا ہے اور تعلقات ہموار کیے جا رہے ہیں، وہ نئے اتحاد کا پیش عمل نظر آتا ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور جو بیانات دیے ہیں بلاول بھٹو نے اس کے بارے میں آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنی حد تک درست ہے. اللہ آپ کا اور میرا عامر ناصر. السلام علیکم.